Good afternoon, students. Today we are going to discuss about ionic radius and ionization enthalpy. Students, आज हम लोग ionic radius और ionization enthalpy के बारे में डिस्कस करेंगे. Earlier we have discussed about atomic radius, in which we have seen about the covalent radius, the metallic radius and the van der Waals radius. So now we are going to discuss about ionic radius. Students, whenever the removal of an electron from an atom is done, it results in the formation of a cation. You all know with this fact, that is, suppose this is an atom, and whenever there is removal of an electron from this atom, then it results in formation of a cation. Okay, and the addition of an electron leads to an anion, and whenever in an atom there is addition of an electron, it leads to an formation of an anion. Okay. So students, the positive species are basically the cation and the negative species are the anion. Here what you have to remember in case of ionic radius is that, suppose we are considering a case that we are taking Na and Na plus. So in both, the cation will be smaller than its parent atom. That is, suppose the parent atom is Na and the cation is Na plus. So in both of them, the parent atom will have larger ionic radius. Okay. But students, the case is reverse in case of anion. In case of anion, the parent atom will be smaller and the anion will be larger. That is, here you can see anion Cl minus is larger than the parent atom, that is Cl. Okay. Student, there is one more concept of isoelectronic species. So when we find some atoms and ions which contain the same number of electron, स्टूडेंट सपोज़ करिए वो कंडीशन जिसमें अगर हम आयन से एटम्स की बात कर रहे हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज. आइसो दैट इज़ सिमिलर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं जिनके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स हो. सो यू कैन सी O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg प्लस प्लस, इन ऑल ऑफ देम देयर इज़ 10 इलेक्ट्रॉन. सो दीज स्पेसीज आर टर्म्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी how we can determine the ionic radii. So there will be different because of their different nuclear charge. Ionic radii will differ as if they are termed as ionic isoelectronic species, but their ionic radii is different. Okay. So in case of, suppose we are taking any example like Mg and Mg2 plus, so as earlier also discussed, in comparison to cation, the parent atom will be have larger ionic radii, and in case of here also, in case of aluminium, sub Al3 plus will have lower ionic radii than Al. Okay. And overall, if we will compare both of them, then we can see that Mg has the largest atomic radii, ionic radii, and Al3 plus has the least ionic radii. Okay. Now students, let's discuss about the ionization enthalpy. So ionization enthalpy is basically the minimum amount of energy required to remove the outermost electron. Okay, मतलब जो सबसे मिनिमम एनर्जी लगती है किसी भी एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी. और ये डिपेंड करती है हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं. फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इट इज़ टर्म्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन इट इज़ टर्म्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड द सक्सेसिव गोज़ ऑन. एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट X के लिए हमेशा क्या होगी, हायर होगी देन द सेकेंड, लोअर होगी देन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. आप यहाँ देख सकते हैं, हम गैसियस एटम था, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और ये आयंस में कन्वर्ट हुआ. सेकेंड केस में आप देख रहे हैं ये खुद आयनिक फॉर्म में था, इसमें से हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, ये X2 प्लस मिल गया. तो सेकेंड केस में जो एनर्जी लगेगी वो हायर लगेगी इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट केस. ओके. एंड स्टूडेंट, टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है. सो अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड की बात करें, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है. दैट मीन्स हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में. जबकि अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज़ करती है, मतलब हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं. अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड देख रहे हैं, दैट इज़ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, तो हम देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा जब फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड का केस आएगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स,
इन केस ऑफ यू कैन सी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में क्या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी एज़ कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, जहाँ पे हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन नहीं है। नाइट्रोजन के केस में हम जानते हैं 2p3, दैट इज़ देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल, तो इसे रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, यू कैन सी हियर यहाँ पे उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, दैट इज़ वी कॉल इट एज एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन आपको दिमाग में रखना है। दैट्स वाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर देन ऑक्सीजन, जबकि होना क्या चाहिए था, अलॉन्ग अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती जानी चाहिए थी। बेरिलियम की लिथियम से ज़्यादा थी, बोरॉन की बेरिलियम से ज़्यादा थी, कार्बन की बोरॉन से ज़्यादा थी, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा थी, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देयर कम्स एन एक्सेप्शन। ओके एंड स्टूडेंट्स, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड जैसे अल्कली मेटल्स को लेते हैं, दैट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबीडियम, सीजियम, तो हम देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज़ करते जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स का नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते जा रहा है, और जो हम कह सकते हैं कि आउटवेट कर सकता है यहाँ पे सीलिंग, और जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।